Hello and welcome. Welcome to the weekly analysis of Bank Nifty and key stocks of banking sector. Friends, आज है 25th October and Sunday. We'll be estimating the probable moves, buying and selling zones, resistance and support levels, and trading or investing opportunities in Bank Nifty as well as banking stocks for the next trading day, जो कि पड़ेगा 27th को Monday, 26th को Monday, and entire week ahead. There are a lot of events lined up in India as well as in US, so that will have impact on our market. And let's see what is happening around, right? Well, if you are new to our YouTube channel, friends, subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon here. By pressing the bell icon, you will get intimation on the videos we upload on YouTube immediately on your mailbox or in your YouTube channel, right? So let's look at Nifty and Bank Nifty charts and see what's happening in the market. फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो 15th अक्टूबर की लार्ज बियरिश कैंडलस्टिक थी, निफ्टी हैज स्टिल बीन consolidating within that candlestick, while as bank nifty is out of that candle and it has in fact moved equally high, right? जितना ड्रॉप आया था उस दिन, उसके ऑलमोस्ट जितना ड्रॉप था उसके आसपास में बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी उतना कवर अप कर लिया है. वो कवर अप करने के बाद बैंक निफ्टी still seems to be strong. However, if you look from the perspective of 31st August, तो निफ्टी ने 31st अगस्त की जो हाई थी वो तोड़ के ऊपर चला गया, जबकि बैंक निफ्टी 31st अगस्त के हाई को अभी भी तोड़ नहीं पाया है. सो अगर आप पूरे एक डेढ़ महीने के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो निफ्टी स्ट्रांग है, बट अगर आप लास्ट 10-15 दिन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिख रही. एनीवेज, ये वीडियो में हम लोग निफ्टी की बात नहीं करेंगे क्योंकि निफ्टी एंड इसके जो की कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ऑलमोस्ट 10 स्टॉक्स, हैवीवेट 10 स्टॉक्स, उसकी मैंने सेपरेटली एक वीडियो बना दी है जिसको कि आप देख सकते हैं, और उन स्टॉक का मैं अपनी पोजीशन जिस हिसाब से एनालिसिस हुई है उस हिसाब से ले सकते हैं. ऑफ कोर्स व्हेन आई एम talking about the stocks or indices or trading perspective, you need to talk to your financial advisor before you take any position. Friends, stock market is a risky business, so that's my disclaimer for you. Without learning, you should not enter into it, right? So let's look from the bank nifty perspective in this video. So bank nifty में फ्राइडे को गैप अप के साथ में मार्केट स्टार्ट हुई, बट देयर वाज अ प्रॉफिट बुकिंग एंड बियरिश बायस, राइट? सो इनफैक्ट थर्सडे एज वेल एज फ्राइडे बैंक निफ्टी ने जो वेडनेसडे की कैंडल है उसके इन कैंडल में कंसोलिडेट किया है. एंड अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे जो मैंने थर्सडे या फ्राइडे को रिलीज किए थे, आई सेड द मार्केट वुड बी नाउ इन अ कंसोलिडेशन जोन. जब तक ये रेंज तोड़ती नहीं है, राइट, तब तक निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी will not be moving in a single direction decisively. It will keep on hovering in a range and become volatile. So you need to be careful as an intraday trader. Of course, if you are a long-term investor or you are a positional trader, then there's nothing much to concern about, right? Well, let me expand this image to complete screen and see what kind of सपोर्ट सिस्टम्स आर इमर्जिंग, राइट? अगर बैंक निफ्टी डाउन साइड में जाती तो फ्रेंड्स पहला जो सपोर्ट लेवल है वो है 24,385 का, विच इज इन फैक्ट 61% फिबोनाची लेवल फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई. एंड ये लेवल बहुत स्ट्रांग होता है, इसको हम गोल्डन फिबोनाची भी कहते हैं, राइट? इसके टैड बिलो 24,361 पे एक सपोर्ट लेवल है जो कि हमारा फ्राइडे का लो है, राइट? एंड बिलो देन दैट देयर इज अनदर सपोर्ट लेवल 24,250, and yet there is another 50% Fibonacci level 24,112 and 24,100, which is a very strong support level. But for Monday, the strongest support level could be 24,040 downside में, right? So that is a low of our Wednesday as well. अगर हम अपर साइड में देखते हैं फ्रेंड्स, तो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमको मिलेगा फ्राइडे की ओपनिंग से, और फ्राइडे की ओपनिंग हुई थी 24,669 पे. फ्राइडे की हाई वुड बी आवर सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस विच इज एट 24,764, एंड जो वेडनेसडे का हाई है दैट हैज 24,824,
दैट इज आर थर्ड रेजिस्टेंस। अगर ये लेवल टूटती है तो 25,038 इज आर नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर हम मंडे के पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर मंडे ज्यादा वोलेटाइल होती है मार्केट, तो यू वुड सी 24,000, let me jot that down friends, 24,040 का लेवल डाउन साइड में, एंड अप साइड में आपको 2538 का लेवल, right? 038. So this is your trading range from the price action perspective. And of course, at the end of the session, we'll be looking at what kind of intraday trading opportunities can be made available to you, or if it is tradable market for novice traders on Monday, right? But before that, let's go to the constituents of Bank Nifty and understand how they are performing, because at the end of the day, अगर Bank Nifty के constituents perform अच्छा करेंगे तो Bank Nifty definitely अच्छा perform करेगी. So इसका जो सबसे बड़ा constituents है, that's HDFC Bank, friends. Let's look at HDFC Bank and see HDFC Banks had been in a bullish bias. It had come out of that W pattern. I think 2 weeks back, I had given this call for the target of 1335. So far ये call अच्छी progress कर रही है, और at this point of time ये एक resistive zone है या supply zone है, जहाँ पे आपको थोड़ा consolidation दिखाई दे रहा है. ये level टूटेगा तो उसके बाद में next level इसका 1273 and 1298 एंड 1335 की, ये 3 लेवल हैं जो कि फिबोनाची नंबर भी हैं. तो ये इसके टारगेट हैं फ्रेंड्स. एज लॉन्ग एज मार्केट में तेजी बनी रहेगी, यू वुड सी HDFC बैंक वुड बी परफॉर्मिंग well, right? So let's look at another constituent. It's not a constituent of Bank Nifty, but it's a financial stock, HDFC, right? HDFC Bank and HDFC put together are also called financial twins, right? So HDFC Housing Development Finance Corporation is also bullish. In fact, अगर ये देखेंगे तो this seems to be more bullish than HDFC Bank itself. The reason being very simple. Banks में जो मोरेटोरियम का challenges था, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट थोड़ा अनसर्टेनिटी थी, वो अब धीरे धीरे क्लियर हो रही. दैट्स वेयर बैंक निफ्टी इज पिकिंग अप. बट ये बाकी के जो सेक्टर्स हैं उसमें ऑलरेडी क्लैरिटी थी. दैट्स व्हाट इज बीन रिफ्लेक्टिंग हियर इन HDFC, राइट? तो HDFC का हमारा नेक्स्ट टारगेट है 2191 का, which is at the upper trend line, right? ये जो चैनल की जो ascending चैनल है उसकी upper trend line पे है, and if that is broken then you will see 2284.85 का, and 2500 is the नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन जहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगी. तो जब भी जो मार्केट या कोई भी स्टॉक सप्लाई जोन में आता है फ्रेंड्स, यू वुड सी दैट प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वहां पे. यू नीड टू बी केयरफुल, और पार्ट प्रॉफिट वहां बुक कर सकते हैं, एंड पार्ट प्रॉफिट के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. लेट्स लुक एट थर्ड स्टॉक ऑफ banking and financial sector, that's Axis Bank, and Axis Bank has been in a bullish mode. Axis Bank में भी हमने target set किए थे on bullish side. In fact, Axis Bank and one more private banks are seemingly very good for long term. एंड एक्सिस बैंक की हमारी कॉल थी 475 के ऊपर की, ऑलरेडी 507 तक आ गया. हमारा टारगेट है 536 का. सो मोर और लेस जो हमारे लास्ट कमेंट्री थी लास्ट वीकेंड की, वो इसमें कंटिन्यू है. एंड you might see at 536 some profit booking happening, and if 536 is decisively broken, and soon you would see 613 would be our next target on Axis Bank, friends. So not much of change in Axis Bank. RBL Bank देखते हैं friends. RBL Bank was I think in a sideways, और हमने इसको avoid किया था ट्रेड करने के लिए. ऑल्दो इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, बट ये ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है हेड एंड शोल्डर से, और इसका जो ब्रेकआउट चाहिए है दैट इज अबव 100 डेज मूविंग एवरेज, मतलब 180 के ऊपर. तो ये जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जोन है या सप्लाई जोन है फ्रेंड्स, ये है हमारा 175 से 185 का. इनफैक्ट 185 के ऊपर जाए और यहाँ पे 2 दिन उसके ऊपर सस्टेन करे तो डेफिनेटली देयर इज अ गुड buying opportunity then, right? And your target would be 214 until
इट क्रॉसेज 185, इसमें एक आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा, राइट? तो ये अभी भी वैसे ही है, एंड नो बाइंग recommendations on that. Let's look at State Bank of India. I call it a elephant bank of India. Reason being simple, move करता है, अच्छा बैंक है, but बहुत slow move करता है. This has also made a head and shoulder pattern, and head and shoulder से breakout नहीं हुआ यहाँ पे. This is only thing holding here, right? तो अगर आपको ये 207, 208 के ऊपर जाए तो then you would see that the next target could be 232 and 245. Overall अगर आप long term के investor हैं तो definitely this is a good bank, right? 50 डेज और 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और अच्छा सपोर्ट लेवल अवेलेबल है इसको 200 के आसपास में नाउ, राइट? जैसे जैसे आप एक एक बैंकिंग के स्टॉक को देखते जा रहे हैं, यू माइट हैव बीन ऑब्जर्विंग दीज स्टॉक्स और दी चार्ट्स फॉर मोर देन फ्यू मंथ्स नाउ. तो इनके जो अक्यूमुलेशन जोन है या डिमांड जोन है, आप वो देखेंगे कि धीरे धीरे अपसाइड में शिफ्ट होते जा रहे हैं. दैट्स अ गुड साइन, राइट? Now, next bank is Kotak Bank, one of the best banks, but it's been under pressure lately, right? It has not performed the way Axis Bank or ICICI Bank have performed. However, it is above 100 days moving average, and ये जो इसका 1400 का लेवल है फ्रेंड्स, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि 1400 का लेवल सस्टेनेबली ब्रेकआउट होए और मार्केट वहां सस्टेन करे फॉर फ्यू डेज, देन यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन फॉर अ 1500 के टारगेट के लिए. 100 पॉइंट का टारगेट होएगा, बट दिस इज अ 61% फिबोनाची लेवल जो कि अभी तक ये तोड़ नहीं पाया है, राइट? तो एज ऑफ नाउ नो पोजीशन इन दिस, बट अबव देन 1400 it could have a buying opportunity, right? Next constituent of banking sector is, friends, ICICI Bank. And ICICI Bank had been performing very well, right? In fact, it's in the radar of brokers and a good recommendation. Apart from that, inverted head and shoulder pattern से ये बाहर निकला है, and it has already crossed 61% Fibonacci. Now ये जिस जगह पे बैठा हुआ है वो एक इसका डिस्ट्रीब्यूशन जोन है. दैट मीन्स ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है. तो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद में लेकिन प्राइस नीचे गिर नहीं रही है, राइट? तो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ गई है अभी. दैट इज अ गुड साइन. अगर आप मार्च के बाद में देखें तो प्राइस कंसिस्टेंटली इसकी प्रेशर में थी, एंड ऑल्दो 31 अगस्त को इसने 200 डेज का मूविंग एवरेज टच किया था, बट सस्टेन नहीं किया उसके ऊपर, राइट? और अगर आप देखेंगे तो 15 अक्टूबर को जो ड्रॉप हुआ था, that day this also dropped, but it was supported by 61% Fibonacci, right? That's what is a golden Fibonacci. Now it is sustaining last 5, मतलब पूरे last 1 week में ये 200 days के मूविंग के 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था. तो यहां से एक अप मूव इसमें बनता है जो कि 450 के टारगेट के लिए है पहला, और सेकंड टारगेट है 500 का. इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देन अराउंड 550 के आसपास में इसका नेक्स्ट थर्ड लेवल का टारगेट होएगा, फ्रेंड. बट आपको होल्ड करना पड़ेगा ये स्टॉक, एंड जैसे जैसे ये इसके सप्लाई जोन में आते जाएगा वैसे वैसे प्रॉफिट बुकिंग होएगी, कंसोलिडेशन होएगा वो जोन में. सो इतना पेशेंस आपके पास में होना चाहिए इफ यू आर इन दिस मार्केट. लास्ट बट वन, राइट? इंडस इंड बैंक देखते हैं. इंडस इंड बैंक में सो फार हमने जितने भी बैंक देखे या तो न्यूट्रल हैं या ज्यादातर बैंक में बुलिश सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं. इंडस इंड बैंक भी साइडवेज में है, ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न से, फ्रेंड. जब तक ये 641 के ऊपर नहीं जाता है, राइट? 640 के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा इसको, एंड द फर्स्ट टारगेट विल बी 705 and second target will be then 795. Now 795 ये जो हेड एंड शोल्डर है इसका टारगेट है, तो बट ब्रेकआउट के लिए वेट करें, राइट? अदरवाइज इंडिकेटर्स इसके साइडवेज दिखा रहे हैं. बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे अभी भी डेवलप नहीं हुआ है बहुत ज्यादा, राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेडरल बैंक, फ्रेंड्स. फेडरल बैंक आई थिंक अराउंड 46 से मैंने बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी, या मेरे एनालिसिस में ये
बुलिश दिख रहा था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न से बाहर आया है ये, और इसका जो टारगेट होएगा वो 62 का था, आई थिंक ये लेवल था 62, एंड नेक्स्ट टारगेट है 68 का एंड 80 का थर्ड टारगेट है इसका, राइट। तो स्लो मूविंग है बट बुलिश बायस के साथ में दिखाई दे रहा है, और ये 61% फिबोनाची के ऊपर चला गया, राइट। तो एक हफ्ते से वहां सस्टेन कर रहा है। सो अगर मार्केट में बुलिशनेस रहती है तो यू वुड सी फेडरल बैंक आल्सो मूविंग अपसाइड। नाउ व्हाटएवर analysis I did based upon the technical charts, right? You also need to understand the charts are driven not only from the domestic pressures but also from international pressures. अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, वहां से क्या इनपुट्स मिल रहे हैं या फीडबैक मिल रहे हैं, वो आपको देखना है, तो आप निफ्टी एंड की स्टॉक्स ऑफ निफ्टी के वीडियो में देखें। वहां पे मैंने 4 इंटरनेशनल मार्केट या यूएस एंड जर्मन मार्केट को एनालाइज किया हुआ है, तो दैट विल गिव यू अ जिस्ट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। अगर आप एक ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो आपको अलग अलग टाइप से इनपुट लेते रहना चाहिए ताकि आप मार्केट की डायनेमिक्स को समझ पाए, राइट। गोइंग बैक टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी चार्ट्स, लेट मी look at then डेटा पर्सपेक्टिव, राइट। कि हमने बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ तो देखी, बैंक निफ्टी के जो की कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसमें किसी में भी नेगेटिव बायस नहीं है एज ऑफ नाउ, मोस्टली पॉजिटिव बायस है, और 2 बैंक में साइडवेज का बायस है, राइट। तो ब्रेकआउट की तैयारी वो 2 बैंक भी कर रहे हैं। नाउ अगर हम ऑप्शन चेन देखेंगे फ्रेंड्स, वी आर लुकिंग एट द वीकली एक्सपायरी ऑप्शन चेन विच विल एक्सपायर ऑन 29th October, and no, yeah, and bank nifty has closed at 24,478, तो हम देखेंगे 24,500 को एज अ एट द मनी स्ट्राइक, एंड वहां पे देखेंगे कि किस टाइप के पोजीशन यहाँ पे बन रहे, राइट। तो 24,500 को एटीएम अगर हमने लिया तो यू कैन सी दैट बुल्स आर एक्टिव एट 24,500, 24,400 में भी बहुत ज्यादा पुट राइटिंग नहीं हुई है बट ठीक ठाक है, राइट। सो 24,200, 24,300 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं है, ऑल्दो सपोर्ट है बट स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो लेवल है वो है हमारे पास में 24,000 का, जहां पे कि हमको मैक्सिमम ओआई दिख रहा है, राइट। तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। और अगर हम कॉल साइड में देखें फ्रेंड्स तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल दिख रहा है 24,500 का एज अ रेजिस्टेंस, देन 24,600 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, 24,700 भी दिख रहा है, 24,800 भी, एंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है 25,000 में ये साइड में। सो 24,000 से 25,000 की रेंज जो है हमको मंडे के लिए यहाँ से दिखाई दे रही है, राइट। 24,000 to 25, तो मैं ये लिख देता हूँ। और मोरलेस यही रेंज हमारी प्राइस एक्शन से भी दिखाई दे रही थी, राइट। अगर हम इसका पीसीआर देखें फ्रेंड्स तो नाउ पीसीआर इज अराउंड 0.83, जो कि एक न्यूट्रल टू नेगेटिव बायस दे रहा है, जो कि यहाँ आपको कॉल साइड में जिस टाइप की कॉल राइटिंग हुई है उससे क्लियरली दिखाई है। पुट साइड में उतनी पुट राइटिंग नहीं हुई है, राइट। सो मंडे यू नीड टू बी केयरफुल, हो सकता है बैंक निफ्टी में आपको स्विंग्स दिखाई दें, राइट। एफआईआईज आर नेट बुलिश इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो that's good news, but DIs at the same time are selling out their positions in equities in cash market, right. RSI wise market sideways में है, so some more consolidation you can expect. और अगर हम वीकली पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो बैंक निफ्टी में क्योंकि बहुत दूर तक की पुट राइटिंग या कॉल राइटिंग आपको ज्यादा नहीं दिखाई देती है फ्रेंड्स। इसके लिए निफ्टी, जैसे अगर आप निफ्टी देखेंगे तो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक you would see a good call writing and put writing is happening, while as in bank nifty that's not the case. So bank nifty को बहुत ज्यादा दूर तक देख पाना उतना पॉसिबल नहीं होता जितना कि आप निफ्टी को देख पाते हो। निफ्टी इज मच मोर ब्रॉडर इंडेक्स, राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 नवंबर में कुछ खास कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग हुई नहीं है, तो डेटा के पर्सपेक्टिव से यहाँ ये देख पाना उतना सुटेबल नहीं है, राइट।
So markets are in overbought zone, and that is one of the reason call writing बढ़ रही है यहाँ पे, right? Now अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं फ्रेंड्स, लेट मी गो बैक टू द बैंक निफ्टी चार्ट. सो कहाँ पे हमारे पास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है? अगर हम वीकली सपोर्ट लेवल देखें तो हमारे पास में ये जो सपोर्ट लेवल है ये 23,150 का है और अपर साइड में 25,670 का. सो ये पूरे हफ्ते के लिए हमारी एक रेंज रहेगी. बायस इस टाइम पे बोलना थोड़ा मुश्किल है, यूएस इलेक्शन 3 नवंबर को है तो उसका इम्पैक्ट होएगा एंड शायद मार्केट तब तक कंसोलिडेट होए, तो ये भी एक चीज देखने की. और अगर एडवर्स रिजल्ट्स आते हैं तो उसका इम्पैक्ट वोलेटिलिटी के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा. और जैसे भी निफ्टी 12,000 के नजदीक जाती है, आप ऑलरेडी देख रहे हो वोलेटिलिटी बढ़ रही है, राइट? सो फियर ऑफ कोरोना केसेस राइजिंग अभी खत्म नहीं हुआ है एंड जो यूएस में स्टिमुलस की बात हो रही थी वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुई है, डिक्लेयर नहीं हुआ है उसमें कुछ भी. दैट इज अनदर मैटर ऑफ कंसर्न, राइट? लेट्स गो टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड सी बैंक निफ्टी को क्या हम मंडे को ट्रेड कर सकते हैं, इसके नो ट्रेडिंग जोन्स क्या हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या बन के आते हैं, राइट? सो अगर आप देखोगे फ्रेंड, ये रेंज लास्ट 3 दिन से मतलब जो कि 24,250 से लेके 24,670 की रेंज है, ये रेंज में मार्केट वोलेटाइल है और ये रेंज में आपको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है अनलेस अंटिल यू आर हाईली स्किल्ड एंड यू नो हाउ टू हेज योर पोजीशन. ये एरिया अवॉइड करें. अगर आपको लॉन्ग जाना है फ्रेंड्स, सो 24,824 के ऊपर लॉन्ग जाएं, बिकॉज अगर मार्केट गैप अप स्टार्ट होगी ये जोन में तो आपको एक सेल ऑफ दिखाई देगा, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी यहाँ पे. और अगर आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो 24,250 के नीचे शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हैं. आपका टारगेट होएगा 25,100 का. सो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट आपको शॉर्ट साइड में यहाँ पे मिल सकते हैं. ये जोन को थोड़ा अवॉइड करें. या अगर मार्केट लेट्स से 24,500 के आसपास में स्टार्ट होती है तो आप पहले 10 मिनट की या 15 मिनट की ओपनिंग रेंज कैंडल देखें और जिस भी डायरेक्शन में वो ब्रेक हो रही है उस डायरेक्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं. बट मार्केट को उस डायरेक्शन में सस्टेन करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 25-30 मिनट्स के लिए, right? So that could be another trading strategy, and follow your trading strategy and stop loss, friends. That's how you can become profitable in stock market. Stock market is a risky business, and know your stop losses and your strategies very well if you want to make this as your primary source of income, right? So for Monday, 24,000 to 25,000 is a range. Need to look at various inputs from the market, including the option chain. If you are stock specific in banking stocks, also look at the open interest of their futures, right? USD INR ka chart, India VIX ka chart, and US 30, that's that's Dow Jones का future. उनके charts को भी देखना न भूलें. That will give you a guideline in how to gauge the direction of the market, right? With this, I hope you are able to become a better trader and आपको मार्केट की क्लैरिटी मिल रही होगी, ऐसा मेरा मानना है. And if you need more inputs or if you need us to make some videos, friends, do write in the comment box. We are committed that our community grows and it's becoming profitable trader, right? With that intention, we are making these videos. I'm sure you're getting benefited, as I could see that some of you have written that you are consistently making money. That gives me immense pleasure and that gives me energy to keep on working on these videos, right? Do share the videos with your friends and trading communities who can also be benefited from knowledge and analysis. Watch out, Q2 FY21 के financial results आ रहे हैं and market उनसे भी काफी direction लेती है, right? Of course, smart money का flow देखना ना भूलें. Thank you once again for liking and sharing the videos with your friends and trading communities. See you in the next video. Until then, good luck, happy trading, happy investing.